Please subscribe my channel and also press the bell icon. See my lectures and like and share. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Ashraf Bhatt, teacher High School Shanu. I am going to deliver today a lesson on poem of 8th class, The Bengal Sellers, which is third poem of poetry portion. The Bengal Sellers is written by Sarojini Naidu, is author of this poem, and in this poem, the speaker, the poet, author wants that with the passage of time, the desire of the man, the desire of human being also changes with the passage of time. First of all, I will tell some things which is in the box of this poem. The Bengal sellers carry loads of Bengals to sell at the fairs. The Bengals are delicate, bright and colorful ornaments which add to the beauty of their bearers and serve different purposes on different occasions. जो ये चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं, ये मेलों पे जब कोई त्यौहार होता है, कोई मेला होता है, तो वहाँ पे जाते हैं ये चूड़ियाँ बेचने के लिए. ये चूड़ियाँ बेचने वाले, सरोजिनी नायडू कहती है, चूड़ियाँ बेचने वाले ये वो हैं जो हमारा ये बोर, हमारा ये लोड जो बर्दाश्त करते हैं, बेचते हैं इन महफिलों में, इन मेलों में. और जो ये चूड़ियाँ पहनने वाले होते हैं, दिस बैंगल्स आर डेलिकेट, ये इतनी मुलायम होती है, इतनी नरम होते हैं और कलरफुल होती हैं ये चूड़ियाँ. ये इतनी ऑर्नामेंट्स इतने नाजुक होते हैं और इतने कलरफुल होते हैं कि पहनने वाले की हुस्न को दुबाला कर देती है ये चूड़ियाँ. और मुख्तलिफ मौकों पे जब ये औरत जब जन्म लेती है ये बच्ची माँ से, तो इसकी दिल की ख्वाहिश कुछ और होती है. उसकी उस चूड़ियों का रंग उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होती है. जूं ये बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, फिर इसकी शादी हो जाती है, तो साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज डिजायर आल्सो चेंजेस. Not only desire changes, but also the color of the bangles also changes. I will teach this poem. Bengal sellers are we who bear our shining lords to the temple fair. Who will buy these delicate bride? Who will buy these delicate bride? Rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives, for happy daughters and happy wives. Some are meet for maiden's wrist, silver and blue as the mountain's mist. Some are flashed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of a newborn leaves. This is a big poem. It has 4 stanzas, and I will only explain 2 stanzas today. Inshallah, tomorrow I will explain more 2 stanzas. In first stanza of the poem, the Sarojini Naidu says, Sarojini Naidu, author says, Bengal sellers are who we bear. Bengal sellers are who we bear. These are the Bengal sellers who bear us, who bear our loads. Bengal sellers bear our loads, our shining loads to the temple fair. When there is any festival, when there is any fair, they bear our loads and go to the fairs and sell these bangles on the fairs, on the festivals. Who will buy these delicate bride? They are calling, Bengalas, Bengalas, Bengalas. Who will buy these delicate bride? Who are desire? Who wanted to buy these delicate and bright, colorful bengalas?
rainbow tinted circles of light. They are the circles of light. They are transparent. They are made up of transparent glass, these bangles, and they are tinted. They are tinted by the rainbow tinted. Means here, rainbow tinted means here they are colored, decorated in different colors, tinted, lustrous tokens of radiant lives. These are the lustrous tokens, bright tokens. These are, ये यहाँ पे कहता है कि ये चमकीले टोकनों की तरह होते हैं. जिस तरह से वो टोकन, जिस तरह ये वो चूड़ियां हैं जो चमकती हैं, lustrous tokens, चमकने वाली चूड़ियां हैं ये, of radiant lives, और उन चमकने वाले जिंदगियों के लिए है, जिनकी ख्वाहिश अभी चमकती है, जिनके ख्वाब अभी बहुत हैं, उनके लिए हैं ये. फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स, ये उन खुश नुमा, उन बेटियों के लिए है, खुश रहने वाले बेटियों के लिए है, और उन खुश रहने वाले उन बहुओं के लिए है, बीवियों के लिए है, जो चाहते हैं कि हम ये चूड़ियां ले, हम ये चूड़ियां खरीद लें. अब सरोजनी नायडू कहती है यहां पे, नाउ सरोजनी नायडू सेज सम आर मींट फॉर द मैडनस रिस्ट. इनमें ये बहुत सारी चूड़ियां होती है चूड़ी बेचने वाले के पास, बैंगल सेलर के पास. अब कहती है सरोजनी नायडू सम आर मींट फॉर अ मैडनस रिस्ट. अभी इनमें से बहुत कलर की चूड़ियां हैं, अलबत्ता कुछ कलर, मखसूस कलर उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो भी जवान है. फॉर द मैडनस रिस्ट, जो भी कुंवारी है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए उनका अलग कुछ कलर होता है, उनकी अपनी चॉइस अलग होती है, उनके वो डिजायर अलग होती है. इसलिए सरोजनी नायडू कहती है कि कुछ है उन लोगों के लिए जो अभी कुंवारी हैं. सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन्स मिस्ट, उनके लिए क्या कलर है? सिल्वर और ब्लू है उनका कलर. एज द माउंटेन्स मिस्ट, जिस तरह से पहाड़ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है और हमें दूर से वो पहाड़ चमकता दिखाई देता है, इसी तरह से ये चूड़ियां भी चमकती है. उनके वो ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश अभी चमकती रहती है, अभी चमकती होती है वो दिल की ख्वाहिश. और ये कहती है सरोजनी नायडू, ये उन जवान कुंवारी लड़कियों के लिए है ये सिल्वर और ब्लू, ये चूड़ियां. जिस तरह से पहाड़ पे जब सूरज की वो किरणें जो पड़ती है तो वो पहाड़ चमकता है, इसी तरह से जब ये चूड़ियां वो पहनी तो उनकी खुशियां भी उसी तरह से चमकते हैं. Some are flushed like the buds that dream. और कुछ है उन बच्चों के लिए, उन छोटी बच्चों के लिए. Some are flushed like the buds that dream, जिनके अभी ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं, जो भी वो फूल की कोपलों में से निकलने वाले होते हैं. The buds that dream, उनके ख्वाब बहुत होते हैं, अभी वो फुल जड़ी में कोई निकलने ही वाले होते हैं, उनके बहुत ख्वाब होते हैं. On the tranquil brow of a woodland stream, और बिल्कुल वो एक ऐसी जगह पे होते हैं, वो आराम की जिंदगी बसर करते हैं. उन्होंने अभी कोई अप्स और डाउन्स नहीं देखे होते हैं. उनकी बिल्कुल अभी होती है जिंदगी, वो गमों से दूर होती है, उनकी मुसीबतों से दूर जिंदगी होती है. इसी तरह से कहता है सरोजनी नायडू कहती है on the tranquil brow of a woodland stream, and they are living on a peaceful land. Some are aglow, and the bangles in the bangle seller says some bangles they are glowing. Some are aglow with a bloom that cleaves. Some are glowing with the bloom that cleaves. उस तरह से ग्लोइंग होती है कुछ चूड़ियां. जब एक पत्ता उस पौधे में से एक पत्ता निकलता है, जब हम बीज बोते हैं जमीन में, तो वहां से उस बीज में से एक छोटा सा सीडलिंग प्लांट, एक छोटा सा तन्ना निकलता है. जिस तरह से उस तन्ने में उसके उस पत्ते मुख्तलिफ वो समूह की तरह बिखर जाते हैं, इन डिफरेंट साइड्स वो बिखर जाते हैं, उनके मुख्तलिफ अतराफ वो बिखर जाते हैं, अपनी अपनी राह लेते हैं. इसी तरह से कहता है कि कुछ उन लोगों के लिए हैं, कुछ उन बच्चों के लिए हैं जो अभी बहुत छोटी हैं, जो अभी जन्म ही ले रहे हैं, कुछ उनके लिए हैं.
to the limpid glory of newborn leaves. कि अभी वो निकलने ही वाले हैं, अभी वो जन्म ही लेती हैं, वो बच्चियां सम उनके लिए हैं. Some are like field of sunlit corn. और कुछ जोड़ियां हैं. Some are like field of sunlit corn. ये sunlit उस खेत की तरह जिसमें से हमने बीज बोया है. Sunlit corn. फिर उस बीज पे, फिर उस खेत पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं. वहां के वो खेत चमकता है, वो लहलाता है. कुछ उनके लिए है. Meet for a bride on her bridal morn. जब ये दुल्हन सजी होती है उस शादी के दिन. कुछ उन लोगों के लिए है कुछ चूड़ियां. वो चमकती है. नई नवेली दुल्हन जब तैयार होती है बेटी शादी के लिए, तो जिस तरह से वो चमकती है, कुछ चूड़ियां उसके लिए हैं, उसके उस शादी के दिन के लिए होती हैं. फॉर द ब्रिडल मॉर्न. सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर. जिस तरह से वो उस शादी में, जब वो शादी का दिन होता है तो उसमें वो रिवाज, वो रस्म होती है कि वो उस आग के बिल्कुल आग के वो इर्द गिर्द घूमते हैं. तो जिस तरह से वो आग में से वो शोले भड़कते हैं, जिस तरह उसे शोले चमकते हैं, इसी तरह कहता है ये सरोजिनी नायडू कहती है कि कुछ उसके उस खुशियों के लिए है. जिस तरह से उसकी वो खुशी चमकती है, जिस तरह से उस शादी के दिन उसकी वो खुशी होती है, दिल की ख्वाहिश होती है, इसी तरह उसके दिन के लिए, उस दुल्हन के लिए कुछ चूड़ियां इसमें उस दुल्हन के लिए भी हैं. Are rich with the hue of her heart's desire. जिस तरह से उसके दिल की वो ख्वाहिश होती है, दिल की ख्वाहिश के बहुत अरमान होते हैं, उसके दिल में बहुत अरमान होते हैं उस दुल्हन के, उसके लिए कुछ चूड़ियां हैं. Sarojini Naidu wants to relate this desire with the bangles. There are different colors of bangles. Some colors are meant for a baby, and some are meant for the woman who is some are meant for a maiden, and some are meant for a woman who passes his half age, who crosses his half age, and some colors are meant for a woman who is bride, whose marriage is going to celebrate. Tinkling luminous, tender and clear. Tinkling luminous means when the bangle falls on the ground, it makes some rounding sound. Tinkling luminous. ये चमकीले ये जोड़ियां होती है और इनमें ये आवाज भी अच्छी होती है. टेंडर एंड क्लियर, और मुलायम होती है और साफ दिखाई देती है. लाइक द ब्रिडल लाफ्ट एंड ब्रिडल स्टीयर. जिस तरह से उस दुल्हन का वो दिन होता है, उसकी शादी का दिन होता है, वो चमकीला दिन होता है, अगर उसके आंखों से एक आंसू बहे उस दिन, तो जिस तरह से वो आंसू उसके इस माथे पे, इसके चिक्स पे पड़ता है, फिर जिस तरह से वो डायमंड की तरह उस पे लाइट रोशनी पड़ती है उस आंसू पे, तो जिस तरह से वो डिफरेंट कलर्स दिखता है हमें, मोती जैसा दिखता है हमें, इस तरह से ये चूड़ियां भी उस मोती जैसी होती हैं. This is I explained three stanzas today, and tomorrow I will explain more 2 stanzas of this poem, and inshallah to write the exercise of this poem and summary of the poem inshallah tomorrow. Khuda Hafiz. This is enough for today.